Hello students, welcome back. Now in the last lecture children we have been studying about the NAP 2000 or New Agricultural Policy 2000. I told you about the introductory statement about this particular policy. Then we also discussed what are the different objectives of NAP 2000, and then the main question that we analyzed children was related to what is called as the features of New Agricultural Policy 2000. Now today's lecture children we will focus on the implications of New Agricultural Policy. What are the implications word children? That's almost equal to impact. So we'll also talk about the success and the failures that we had now, how it impacted, how it's going to impact the Indian economy in totality. So here is the answer children, implications of NAP 2000. Children, the beginning of the policy statement read like this: this policy seeks to actualize the vast untapped growth potential of Indian agriculture. ऐसा कुछ statement था जो मैंने आपको last lecture में सिखाया था. तो here also children we actually discussed the same thing, that India actually has got a vast potential to exploit and improve the agricultural sector. अभी एग्रीकल्चरल सेक्टर बच्चों इंप्रूव हो सकता है, उसको हम लोग एक्सप्लॉइट मतलब यहाँ पे यूज करना होता है बच्चों लोग, बट वी नीड टू प्रैक्टिकली और एक्चुअलाइज दिस पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर. And but this is only possible children if the agricultural sector in India undergoes many changes which are explained below. ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है बच्चों लोग, there is a need to increase productivity. Now productivity का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? Whether it's like the labor productivity or it's the land productivity, it's the output per hectare we can say, कि हर एक हेक्टर में से हम लोग कितना आउटपुट निकाल सकते हैं बच्चों लोग. Now how are we supposed to increase agricultural productivity? मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं हम लोग? So agriculture requires to be stuffed by sufficient amount of quantitative and qualitative inputs. मतलब बच्चों लोग क्वांटिटी और क्वालिटी में इनपुट्स अवेलेबल करा के देने पड़ेंगे. प्लस एग्रीकल्चर रिक्वायर्स चिल्ड्रन लॉट्स ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज विद लाइक एग्रो सर्विस सेंटर्स दैट वी मे हैव. एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बात आती है बच्चों लोग, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट होते हैं, सीड्स होते हैं, एग्रीकल्चर में रिसर्च होना चाहिए. तो ऑब्वियसली यू नो कि लाइक दिस थिंग्स कैन नॉट बी डन बाय द फार्मर ना, सो वी आर सपोज टू प्रोवाइड दिस सपोर्टिंग सर्विसेज टू द फार्मर्स so that it will increase the agricultural productivity of the Indian agricultural sector. तो तीन चीजें यहाँ पे पता चलते हैं बच्चों लोग कि जो इनपुट्स है वो अवेलेबल करा के दो क्वांटिटी में प्लस क्वालिटी में, प्लस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सम सपोर्टिंग सर्विसेज दैट विल इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन अ कंट्री चिल्ड्रन. अच्छा, दूसरी बात है, there is a need for private investments. I told you in the last lecture children that hitherto मतलब अब तक the Indian agriculture sector was deprived of the private investments. Government never showed much of interest here. प्राइवेट लोगों को रिस्क ज़्यादा लगता था. हाँ, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों लोग? अगर प्राइवेट लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको प्रमोट कैसे कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली इट कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग सम इंसेंटिव्स टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स. जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे उनको हम लोग कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, टैक्स हॉलीडेज होते हैं बच्चों लोग, सब्सिडीज प्रोवाइड किए जाते हैं. या फिर अगर हम लोग पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर नहीं चाहते यहाँ पे, तो वी कैन गो फॉर व्हाट इज कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. मतलब गवर्नमेंट अलॉन्ग विद प्राइवेट फर्म्स कैन गो अहेड एंड डू सम वर्क ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. और जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आएंगे बच्चों लोग तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी मोर एफिशिएंसी, because you all know that private businessmen are profit oriented, so automatically that is going to increase the profitability in the agricultural sector. Plus at the same time we also have this joint venture, what is called a public private partnership, so there will be a presence of government as well. Then we want to increase in investment, matlab a huge amount of investment is required अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने हैं इन एग्रीकल्चरल सेक्टर.
तो आप बोले कि सर कौन सी चीज़ों पे एग्जैक्टली खर्चा करना पड़ेगा हम लोगों को, तो आज भी पता है चलो पानी का प्रॉब्लम होता है। मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर, लाइक एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन monsoon, but monsoons are very erratic. Sometimes we have a dry spell, droughts आते हैं, चलो कभी floods आते हैं, तो we need to depend upon irrigation. There is artificial supply of water. Along with that approach roads चाहिए ना चलो, तो roads भी चाहिए। अच्छा, जो आप प्रोड्यूस करोगे उसके लिए हम लोग अश्योर्ड मार्केट्स भी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ों के लिए आप लोगों को ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट कम्स अप विथ लॉट्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चिल्ड्रन। रूरल एरियाज में हम लोग रोड्स कंस्ट्रक्ट करा के देते हैं। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड देम विथ अश्योर्ड मार्केट्स। देन चिल्ड्रन वी टॉक अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बच्चे लोग प्रेजेंटली इफ यू जस्ट एनालाइज द सिचुएशन, तो एट प्रेजेंट हमारा जो रिसर्च और डेवलपमेंट होता है बच्चों लोग एग्रीकल्चर में, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, they have not succeeded, मतलब लाइक इन प्रोवाइडिंग सफिशिएंट गुड क्वालिटेटिव इनपुट्स, अच्छे क्वालिटी के इनपुट्स प्रोवाइड करने में अब तक हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। रिसर्च मतलब पैसा लगता है यहाँ पे बच्चे लोग। हाँ, तो मोर रिसोर्सेज, दैट इज मोर मनी इज रिक्वायर्ड टू बी अलॉटेड टू इम्प्रूव आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो चिल्ड्रन एग्रीकल्चर में जितना रिसर्च करेंगे, नए नए इनपुट्स आएंगे बच्चे लोग, नए नए आइडियोलॉजीज आते हैं, नए प्रोसेस आएंगे, नए हाइब्रिड्स आते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम होते हैं। 1966 में हमने जो हरियाणा और पंजाब में देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन, इट वाज ओनली ड्यू टू दोज क्वालिटेटिव इनपुट्स, बट इट वाज अ रिजल्ट ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ज़्यादा पैसा अवेलेबल करा के देने की ज़रूरत होती है बच्चों इस सेक्टर के लिए। Then we have the extension program, children. What is that extension program? Agricultural universities, okay, और जो research institute होते हैं, they should be made to train and educate farmers in effective methods of, मतलब फार्मर्स को थोड़ा ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है बच्चों लोग कि कल्टीवेशन के इफेक्टिव मेथड्स कौन से होते हैं, और जो इनपुट्स और रिसोर्सेज होते हैं बच्चों लोग उसको हम लोग किस तरीके से एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेजेस। हाँ, तो फार्मर्स नीड टू बी ट्रेन्ड ऑन टू दोज न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड वी नीड टू डू अवे विद ऑल दोज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द एक्सटेंशन प्रोग्राम बोलते हैं उसको। देन द नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, इट टॉक्स अबाउट द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। Children, we have got various types of technologies. Now we have got a labor-oriented technologies that we have a capital-oriented technology that we use. अच्छा, अभी हमारा देश बच्चों लोग क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हम लोग सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड तो नहीं कर सकते हैं। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू अडॉप्ट इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। Why? Then majority of the people in India would be unemployed. First of all, we face this problem of unemployment. On top of that, if we use that imported technology, जहाँ पे कम से कम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स यूज़ करते हैं, हाँ, तो it won't be so favorable for our economic development. So technology which is appropriate to environment must be developed and used. The technology should be more suitable for the environment. We are not supposed to damage the environment, children. Okay? तो अच्छा सा टेक्नोलॉजी यूज करने की जरूरत है बच्चों लोग हम लोग यहाँ पे। अच्छा, देन एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। अच्छा, इन वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सॉइल, हर एक जगह पे जाओगे आप, हर एक किलोमीटर से आगे जाओगे तो आपको पता है अलग टाइप का सॉइल मिलता है बच्चों लोग। हर एक एरिया में जो वेदर होता है वो भी डिफरेंट है, द एनवायरमेंट इज क्वाइट डिफरेंट अराउंड। हाँ, तो फिर आपको पता है बच्चों लोग, आप एक ही टाइप का स्ट्रेटेजी पूरे के पूरे इंडिया के लिए अडॉप्ट नहीं कर सकते ना। वी रिक्वायर और इट्स नेसेसरी टू डेवलप अ एरिया स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी एंड टू प्रोमोट दैट एग्रीकल्चरल ग्रोथ। मतलब हर एक एरिया के लिए, जैसे महाराष्ट्र कुड एक्चुअली अडॉप्ट अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी एंड विद इन महाराष्ट्र चिल्ड्रन देयर कुड बी डिफरेंट प्लेसेस ना। मतलब for example, if you go to the Raigad side, it would actually have some different technology. If you come to this Kolhapur side, the Deccan Plateau that we have, children, the soil is different, black cotton soil and all that you find. Acha, the the areas which are adjoining to rivers would actually require some different strategy. तो गवर्नमेंट क्या चाहता है कि लाइक यू नो एरिया के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ और उससे हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं बच्चे लोग।
ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन इज द यूज ऑफ वेस्ट लैंड। इंडिया according to the estimates has almost 7.9 million hectares of wasteland which is required to be utilized for agriculture and afforestation। मतलब ऐसे ही पड़ी हुई जमीन, बंजर जमीन रहती है ना, मतलब वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर इधर फॉर एग्रीकल्चर एंड देयर आर नो ट्रीज चिल्ड्रन। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों लोग, यहाँ पे कम से कम 7.9 मिलियन हेक्टेयर जमीन ऐसा है जो वेस्ट लैंड है, या तो आप उसको खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप वहां पे एफॉरेस्टेशन दैट इज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, तो वहां पे आप वेजिटेशन का कवर क्रिएट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्लियर। अच्छा, देन वी हैव दोस सर्विस कोऑपरेटिव्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू परचेस इक्विपमेंट, क्वालिटी सीड्स नहीं मिलते उनको, अच्छा, या फिर अदर इनपुट्स, मार्केटिंग सर्विसेज भी उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होते, तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं बाय दिस कोऑपरेटिव्स। दिस वेरी फेमस नेम इन एग्रीकल्चर चिल्ड्रन, में से हर्ड हिम, इट्स लाइक वी एसोसिएट हिज नेम विद द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, वर्गीस कुरियन, हु इज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया दे कॉल हिम। तो उन्होंने बच्चों लोग इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, अगर ही अकॉर्डिंग टू हिम, इसे लाइक नो cooperatives are the only ways to develop Indian agriculture। बच्चों एक आध गाँव में एक फार्मर है, उसके पास 2 एकड़ जमीन है, कुछ ट्रैक्टर वगैरह नहीं, उसके पास पैसा नहीं होता, वो अपना जो प्रोडक्ट होता है वो मतलब मार्केट तक लेके नहीं जा सकता है। लेकिन अगर एक गांव में एक फार्मर के पास 2 एकड़ जमीन है और ऐसे 50 फार्मर्स है, तो कुल मिला के तो 100 एकड़ जमीन हो गया। सो वाई कांट ऑल दीज फार्मर्स कम टुगेदर, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट देयर लैंड। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करने का, वो 50 में से किसी 4-5 जन के पास ट्रैक्टर्स है, 2-3 जन के खेत में कुआं है, बच्चों लोग वहाँ से पानी आएगा, किसी के पास ट्रैक्टर है तो लोग ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करेंगे। अच्छा, एक जन 2 एकड़ में प्रोड्यूस करता है बच्चों लोग, कितना 100 किलो बनाता है, लेकिन जब 50 लोग बनाएंगे तो हो सकता है बच्चों लोग ऑलमोस्ट 1000 किलो के आसपास चला जाएगा, और उसको मार्केटिंग कर सकते हो, पैकेजिंग कर सकते हो, ब्रांडिंग कर सकते हो, ग्रेडिंग कर सकते हो बच्चों लोग, और मार्केट में अच्छा सा वैल्यू एडिशन करके उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ये सब के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों लोग, ये जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स। देन देयर इज अ नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स। किसकी जरूरत है बच्चों लोग, लैंड रिफॉर्म्स। जैसे बच्चों एक मतलब इंडिया के फार्मर के कुछ प्रॉब्लम्स अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जाए तो यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग चिल्ड्रन, एंड दैट थिंग इज व्हाट यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब देयर आर मेनी पीपल हु आर लैंडलेस, उनके पास जमीन नहीं होती है बच्चों लोग, वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, किसी दूसरे के खेत में खेती करने का काम करते हैं। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट देयर आर फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, मतलब यहाँ पे जमीन का एक टुकड़ा है, फिर वहाँ पे 2 किलोमीटर जाने के बाद और एक वहाँ पे टुकड़ा है, वहाँ पे और किसी गांव में और एक छोटा सा टुकड़ा है। सो चिल्ड्रन, वी आर नॉट एबल टू डू एनी मॉडर्न एग्रीकल्चर इन दैट। एंड देन देयर इज लाइक दिस यू नो जमींदारी सिस्टम ऑल्सो एग्जिस्ट, जहाँ पे जमींदार से फिर सो कॉल्ड लैंडलॉर्ड्स, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन होती है बच्चों लोग। ऑन एन एवरेज एन इंडियन फार्मर ओन्स ओनली 1.2 acres ऑफ लैंड चिल्ड्रन, विच इज अ पैथेटिक सिचुएशन वी कैन से। तो गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे। सबसे पहले जो फार्मर्स जिनका खुद का जमीन नहीं है, वो लोग किसी दूसरे जमींदार के यहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया था, लैंड टू द टिलर, मतलब जो खेती करता है जमीन उसी का। आपको सिर्फ प्रूफ देना है कि आप 3 साल से वहाँ पे खेती करो और आप वो लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते हो, तो और अगर आप क्लेम करोगे तो एक नॉमिनल अमाउंट पे करके वो जमीन आपके नाम पे होता है बच्चों लोग। इसको क्या बोला गया है, लैंड टू द टिलर। इट्स वन ऑफ द पार्ट चिल्ड्रन। कहीं कहीं पे अभी मैंने बोला ना कि यहाँ पे एक टुकड़ा रहता है और कहीं पे एक टुकड़ा और कहीं पे टुकड़ा, तो गवर्नमेंट ने और एक लैंड रिफॉर्म्स लाया था, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स बोलते हैं। मतलब मेरा आधा एकड़ जमीन वहाँ पे, 1 एकड़ उधर है और एक आधा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, तीनों टुकड़े ले लेगी और फिर आपको एक ही जगह पे 2 एकड़ का कंसोलिडेटेड एक लैंड का टुकड़ा दिया जाएगा, मतलब ठीक है। अच्छा, नॉट ओनली दैट चिल्ड्रन, कभी कभी ऐसे भी होता है कि लाइक एक ही फार्मर के नाम पे ज़्यादा ज़मीन रहेगा तो गवर्नमेंट उसके नाम का ज़मीन कॉन्फिस्केट करती है और उसको लैंडलेस फार्मर्स को बच्चों लोग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे, एक आध बार आपने शायद सुना रहेगा विनोबा भावे हु हैड ब्रॉट आउट समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज भूदान आंदोलन। तो जिनके पास एक्स्ट्रा ज़मीन है वो लोग वॉलंटरीली अपना ज़मीन बच्चों लोग क्या करते थे, दान करने का,
और फिर बाद में वो लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था लैंड. Okay, so land to the tiller is the main objective of Indian land reforms. Yet, the marginal farmers in many parts of the country, they are helpless in establishing their own rights. अभी गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि जो खेती करता है जमीन उसी का, लेकिन ये बोलना आसान होता है ना बच्चों लोग. फार्मर किस तरीके से प्रूव करेगा कि वो 3 साल से वहां पे खेती कर रहा है, और वो मतलब उसको अपना अधिकार उस जमीन पे जताना मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है. वो जिला वगैरह वहाँ पे जाके बच्चों लोग क्लेम करेगा तब तक वो ज़मींदार हो सकता है वो फार्मर को ही गायब कर देगा रास्ते में से. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चैलेंज द लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, राइट. हाँ, तो देयर वर सम लूप होल्स इन दिस लैंड रिफॉर्म, सो दे हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल इन इंडिया, वी कैन से चिल्ड्रन. अच्छा, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रन दैट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज कॉल्ड अ चेंज इन एटीट्यूड. बच्चों लोग, इंडियन फार्मर के एटीट्यूड में बदलाव लाने की जरूरत है. I told you in the last lecture, in India we treat agriculture as a way of life. उसको हम लोग लाइफ का एक हिस्सा मान के चलते हैं. Now there is a need that people start giving it a commercial look. मतलब it should not be treated as a way of life. मतलब Indian farmers, they treat it as a way of life and not a commercial venture. So there is a need to change this attitude. We need to treat it like a commercial venture and not as a way of life. Though such attitude is undergoing a change, yet it is not strong enough to transform the Indian agricultural sector. Or on an average, I think children, we know agriculture sector, and people are not very ambitious. हम लोग ये नहीं सोचते बच्चों लोग कि लाइक मार्केट में कौन सी चीज़ों का डिमांड है वो चीज़ें उगाते हैं हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ मेरे को खाने के लिए चपाती लगता है मैं गेहूँ उगाता हूँ, मेरे को खाने के लिए भाकरी लगता है तो चलो हम लोग क्या नाचने या फिर राइस उगाते खेत में. इट्स लाइक मोर ऑफ अ स्टमक ओरिएंटेड एग्रीकल्चर. We are not thinking about producing surplus and marketing it outside because there's a lot of scope, as I told you children. बहुत ज़्यादा potential है कि agriculture में भी आप बहुत सारे profits कमा सकते हो, right? And finally children, we talk about the price policy of the Indian agricultural sector. Government of India has a price policy under which India has not succeeded in providing sufficient income to the farmers. बच्चे लोग, वर्गीस कुरियन अभी जिनके बारे में बात कर रहा था मैं, उन्होंने बोला था कि लाइक द डे इंडियन फार्मर स्टैंड्स ऑलमोस्ट पैरेलल विद अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसमैन, देन वी विल से दैट ही हैज अचीव्ड सक्सेस. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट वांट टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स. और जो बड़े बड़े फार्मर्स उनका तो ठीक है, बट स्मॉलर फार्मर चिल्ड्रन दे डू नॉट हैव राइट्स और मार्केटिंग राइट्स. मतलब मार्केटिंग बच्चों लोग, इट्स अ सिचुएशन इन विच यू आर मार्केटिंग द प्रोडक्ट इनटू द कंज्यूमर्स हैंड, राइट? दैट्स द टाइम व्हेन यू अर्न मनी, बट दोज थिंग्स दे डू नॉट कम इन फार्मर्स हैंड ना. समवन एल्स लाइक कोई एजेंट आएगा, पैसा वो प्रोडक्ट लेके जाएगा, बेचेगा. मतलब यहाँ पे मेहनत करने वाला कोई और है और जो प्रोसीड्स होते हैं उसको एंजॉय करने वाला कोई और ही मिलेगा बच्चों लोग. जैसे अगर ऑनियन बच्चों, ऑनियंस अगर हम लोग फार्मर से वो लोग लॉट में पता है 3 रुपये 5 रुपये में किलो खरीदते हैं और मार्केट में आते आते पता है बच्चों लोग 30-40 रुपये का होता है. वो जो 30 रुपये है बच्चों लोग, उसमें से हम लोग सिर्फ 3 या फिर 5 रुपये किसको दे रहे हैं? फार्मर को. और जो एजेंट्स होते हैं बच्चों, जो दलाल होते हैं, वो उसमें से 25 रुपये लेके जा रहे हैं ना. सो डोंट यू थिंक यहाँ पे मेहनत कोई और कर रहा है और उसका मुनाफा कोई और कमा रहा है? ये तो ऐसे हो गया जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी चलाते हैं और शेयर होल्डर्स बैठ के उसका प्रॉफिट एंजॉय करते हैं. ये सिस्टम बच्चों लोग एग्रीकल्चर में नहीं चलता. सो विद द न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी एंड द वेरियस मेथड्स ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इंडिया कैन इमर्ज एज अ मेजर प्लेयर इन ग्लोबल एग्रीकल्चरल फील्ड. तो बच्चों लोग, नया एग्रीकल्चरल पॉलिसी का मेन एम क्या था कि इंडिया को हम लोग ग्लोबल लेवल पे एग्रीकल्चरल फील्ड में एक मेजर प्लेयर बनाना चाहते थे. सो वी शुड बी एफिशिएंटली फेसिंग द कंपटीशन फ्रॉम दोस ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्लेयर्स, वी कैन से. सो द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी. अभी हमने पॉलिसी तो बना के रखी है बच्चों लोग, लेकिन उसको बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. सो इफ वी सक्सीड इन दैट चिल्ड्रन, ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट वी वुड एक्चुअली हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया, राइट?
सो चिल्ड्रन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। तो मैं क्या चाहता हूं कि आप इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर करके पढ़ के रखना। मतलब उसमें इंट्रोडक्शन आता है पॉलिसी का, फिर आप पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे, फिर आप उसके फीचर्स पढ़ोगे, और फीचर्स के बाद ये इम्प्लीकेशन के पॉइंट्स पढ़ोगे। तो कभी कभी बच्चों लोग क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में, इट विल बी डायरेक्टली आस्क्ड एक्सप्लेन नैप 2000, या फिर दे विल से एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नैप 2000, या फिर लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ब्रिंग आउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी। सो सम और द अदर वे चिल्ड्रन, दिस क्वेश्चन वुड ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन योर एग्जाम। तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ चलो कि किसी ना किसी तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो कभी भी आपको लगता है कि सर अभी से क्या पढ़ने का, कौन से क्वेश्चंस आने वाले, तो कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, उसमें से एक क्वेश्चन है नैप 2000, जो आप पहले से ही पढ़ के रखोगे, क्योंकि आपको पता है जब भी आपका एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे अटेम्प्ट करना है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। In the coming lecture, we will be switching to the agricultural prices. अभी हम लोग बात कर रहे थे ना एग्रीकल्चर प्राइसेस के बारे में। सो नेक्स्ट वाला चैप्टर अपना डिस्कशन के लिए द एग्रीकल्चरल प्राइसेस। तो एग्रीकल्चर के प्राइसेस किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं, क्या मेथड्स होते हैं बच्चों लोग, उसमें से फार्मर्स को क्या मिलता है, उसका मार्केटिंग किस तरीके से होता है, कौन कौन से कमिटीज है, हाँ तो, और फाइनली हाउ आर वी assuring that the farmers get a better price for their products. That's what we'll be studying in the coming lecture. So I'll not mix it up with this agricultural policy. So in the coming lecture we'll go for the next topic. So thank you very much. Bye everyone. Take care. See you in the next lecture.